ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ ਬਹਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਫੇਰ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। और राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ खूब शायर ने किया है, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए, मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, राणे के हाथ में अगर जाम दिया जाए। यार सीकर भाई वक्त तो पहले ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਡਾਢੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕੇਗੀ, 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤਰੰਗੜ ਖਿੱਤੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ उम्मीद। एक शेर मैं भी अर्ज कर दूं, जो मेरी तकरीर जहां से शुरू होगी जब राणा साहब आएंगे, बस शेर सुना देता हूं। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे नासिर भट्ट, हर घर से राणा निकलेगा, तुम कितने राणा मारोगे। दुबरर ਚੀਨ ਟਪਾਕ ਡਮ ਡਮ बहुत अल्लाह। भाई वो बदमाश ग्रुप का एक फैसला है, वो ये फैसला है कि सानू पुछ के किसी बंदे दी बराड़ ते जाना है, सानू पुछ के किसी बंदे नू अपनी बराड़ ते बुलाना है। अगर साडी इजाजत तो बगैर तुसी आमर नू अपनी बराड़ ते बुलाया या ओदी बराड़ ते गए ते तुहाडी ऐसी की तैसी फेर देंगे। है उस बदमाश ग्रुप का मोटो। ਫੋਰਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣੇ। ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਚ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਕ ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। दरवेश ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜੇ ਸਰੇਦਾਰਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਰਤ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਫਸੋਸ ਸਦ ਅਫਸੋਸ। ਹਾਏ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, भेज दी थी उन्होंने, तो प्राइवेट जो पिक्चर तो ठीक है, म्यूट ला लो। नहीं अमर भाई मेरे पास वो उनका नंबर नहीं है, तो इधर से उनके टिकटॉक पे नहीं जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको मैंने मैसेज भेजा है। मेरा वीर रहन दे और रहन दे, जिन्हों खलोता नजर नहीं आना बैठा नजर भी नहीं आना, छड़ दे, कोई फायदा नहीं पे चढ़ता फोटो, छड़ दे भरा, जो गैरत मर गई बंदे दी पीछे रह गई गया। तुसी मैनू भेज दिओ तो मैं चलो फॉरवर्ड कर देना, लेकिन अफसोस ये वे जेड़ा इकबाल ने आख्या ना, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इन्हां नूं लोकी आम लफज समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ दे विच आजमूदा नुस्खा है कि जेड़े बदमाश ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਤਗੜੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਅਸਦ ਬਹਿਰੇਨ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਣਾ। ਮੂਤਰ ਦੀ ਝਾਗਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਠ।
उस वेले। लेकिन ये लातों के भूत ने, बातों से मानते नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे डंडे की जुबान समझते हैं। ये बदमाश ग्रुप है जिहड़ा, ते ਉਹਦੇ वास्ते जे तुसी जुर्मे ज़ईफ़ी करना है तो फिर तुसा मर के मफाजात का सामना करना है। जेड़े कादियानी ये भी बाहर बह के कंधां ते सुनते हो पे, यह गल पल्ले बन लो कि इन्हां बदमाशां ने तुहानूं जिधर आखना है तुसी उधर जाना है, नकेल पा के इन्हां तुहानूं तोड़ना है। आमर नूं बराड़ ते नहीं लैना, सीकर नूं बराड़ ते नहीं लैना, फलाणे दे कोले नहीं जाना, फलाणे दे कोलों नहीं आवना, इधरों नहीं लंघना, उधरों दी नहीं जाना। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ। ਫੋਰਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ? ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਮਸਕੀਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊ ਹੋਇਆ ਪਗਿਆੜ ਮਰੇਲਾ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ, ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰੇਲੇ ਸਾਊ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੱਟ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੇ, ਕੰਡ ਤੇ ਪੁਛਲ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਭਗਿਆੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਗਰੋਹ ਪਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਐਸੀ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਅਲਤਾਫ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਰਤ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਇੰਡ ਭਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਜਬ ਭਾਈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਵਰਿੰਗ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਖਲੋਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂ, ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪੋਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੌਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਜਮਾਤ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਆਪਣਾ ਸੀਕਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਜੇ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਰੋ 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 ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ WhatsApp ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਨਾ,
ਜਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਟੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਬਤਦਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਫੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਔਰ ਬਦ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲੋਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਰੋਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹ ਪੀਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਰੀਜ਼। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਾਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਕਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਆਖਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕੋਸਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ, ਕਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਿਹਾ, ਦਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ। ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਕੇ, ਭਤੀਜਾ ਆਕੇ, ਭਾਣਜਾ ਆਕੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲਿਆਂ ਪਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਛੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਦੂਰ ਆਏ ਅਗਾਂਹ ਕੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਗੰਦੀ ਤਰੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਲੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਣਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਕਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਆਇਨ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੱਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਕਰ, ਸੌਰੀ अस्सलामुअलैकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अमर भाई ओ कल जिन्हों तुसी गवैया आंदी ओदे ते कल मैं ते आना पता नहीं किंजो दियां अस्सलामुअलैकुम बच गईयां वरहमतुल्लाहि लेकिन फट गईयां वबरकातुहू। दिमाग दियां। वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओदियां ते अमर भाई मैं सुन रहा सी अमर भाई दी कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। मेरी आवाज ही नहीं मेरा ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਛੱਡਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਜੰਗ 'ਚ, ਰੋਸ਼ਨ ਜੱਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ, ਨੱਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੱਥ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਖੜਾਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਈ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਤੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਫ ਚਾਹ ਕਿਹੜੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕਰ ਲੋ ਨਾ 50 ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ, ਅਲੀ ਵਲੀ ਵਲੀ ਮਾਇਬ ਦਾ ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਇਬ ਸਭ ਸਾਦਾ ਸ਼ਾਹੀ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੈਂਡੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਕਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਦਈ ਸੁਸਤ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਨੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਜਫ ਮੈਦਾਨ ਗਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀ। ਗਾਟੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਗਾਟੇ ਲਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗਾਟੇ, ਪੂਰੇ ਗਾਟੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਨੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ वाटर तू खाली रोला ही पाना है, वाटर खाली रोला ही पाना। तू भाई वास्ते खलोता तो नहीं हैगा, तू कोई स्टैंड नहीं लिया। ਕਾਇੰਡ ਹਟੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟਡ ਪੌਪਕੌਰਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਮੁਸੰਨਫ ਆਏ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਦੁਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਜਸ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੁਸੰਨਫ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਇੰਡ ਹਟੜ ਭਾਈ पॉपकॉर्न मुक्के ने तो खोल लो। जी मुक गए यार, मजा तो है एक तरह से। टाइम कट गया, बड़ी स्क्रीन लाई सी मैं ते बिग बॉस देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ा अच्छा टाइम कटाया राणा साहब ने, चंगा लग्या। मतलब किस हिसाब से चंगा लगा कटाया? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਕਟਾਇਆ ਟਾਈਮ ਕਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ एंटरटेन समझ लीजिए। मेरा तो ऐसा ही सीन है यार, मैं बिग बॉस देखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, वो बिग बॉस देखते हैं ऐसा ही होता है ना। तो बिग बुल एक के बाद एक कैरेक्टर आना है, तो अच्छा लगा, टाइम कट गया और पॉपकॉर्न भी खत्म हो गए। शुक्र है जाया नहीं हुए, नहीं तो जाया हो जाते। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ
ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀਕਰ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਰੌਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਈਏ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਈਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 3 4 5 6 ਸ਼ੁਰਫਾ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭੌਂਕਾ ਹੈ, ਭੌਂਕਲੈਸ ਜੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਦਾ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਗੰਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਰੌਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਐ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਨਹੀਂ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਬਈ, ਤੋਬਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਅੱਗੋਂ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, बकरी निकले राना राशिद। राना राशिद साहब से क्या चाहते हैं सीकर साहब? यार मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, उसके साथ इंसाफ हो, लेकिन यार इतना जायज मुतालबा काइंड हार्टेड एक बंदा कि यार मैं गाली नहीं दे रहा, सिर्फ मुझसे आके सॉरी कर लो। और सॉरी किस बात पे करनी है कि उसको खोता बनाकर पीछे लगाम जो हज़ारी साहब को पकड़ाई और आमन नसीर भाई को ऊपर बिठा दी। यार कोई देखो तो सही, वैसे अखीर दी आइडियाज, वैसे आखिर किस्म के आइडियाज बनाते ने वो लोग आजकल एआई दी मदद से। लेकिन वो पिक्चर देख के यार मैं ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं रोऊं या हंसूं या सैड हूं, दोनों यार मुझे तो इतनी हंसी आई है ना कांड राइटर भाई, सीकर भाई, यकीन करो मैं स्पेशल ना कल वो भट्ट साहब की लाइव पे गया हूँ उसका शुक्रिया अदा करने, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करने गया था कि ये आपने तेरी में फोटो देना, तेनू देख कितने बिठाते हैं अगले। मैंने बोला इतनी हंसी वाली तस्वीर आपने बनाई कैसे है? एआई का जो है नेगेटिव इस्तेमाल देखो जरा। इलाज लाने राणे राशिद दा साकी ना 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 साकी ना गल बड़ी, मैं जब तेनू कहा सीरियस गल है, ए ज्यादती है। हुण देखो ना एमएसआर साहब आए ने ते अमर भाई मौजूद हो, एमएसआर साहब की कहंदे ने इस बारे च? पता भी जमात दे विच जिहड़ा जुल्म दा निज़ाम है जो तुसी कर रहे हो, दी जरूरत ते आ गई है, ये जो तुसी कर रहे हो इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम जो मरना तुसां भी है, इसे दुनिया च अमल करके। अच्छा तुहानू नासर बैठ दी ब्रॉड से शहीद सदीक नबी सिद्धू भाई ठहर जाओ, अगर तुसी कर लें तो मरण तो बाद भी अन्ने हो। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਫਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਬ ਤੱਕ ਮਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ? ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ एमएसआर भाई आपको क्यों लगता है कि हमने आपको नीचे उतार देना है? आप आराम से बात करें, तसल्ली से। आपने क्या तबलीग करके चले जाना? भाईजान बता रहा हूँ ना मैं, क्या आराम से बात कर वो अच्छा मेरी सिर्फ बात सुने, मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दें, तसल्ली से दें, आपका टाइम लगा देंगे। एमएसआर भाई आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि जब जुल्म इंतहा से बढ़ जाए तो फिर जो है एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है दुनिया में, बस हाँ या ना कर दें? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने फैसला करना है, हमने तो करना ही नहीं। बस ठीक है, ठीक हो गया। अब जुल्म की इंतहाई हो गई है कि इधर राना राशिद साहब है, उनकी तस्वीर लगाकर खोते के ऊपर उनको, मतलब खोते से तशबीह दे के उनके गले में रस्सा डाल के लगाम जो आमन नज़ीर साहब के हाथ में दी हुई है। यार ये जुल्म की इंतहा नहीं हो गई? आपको लगता नहीं कि अब आपको अपना जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए? मेरे भाई मुझे ये बताओ, आपको ये पता है कि अल्लाह के नज़दीक कौन कौन खोता है?
नहीं भाई, एडी में नॉलेज मेरे को। फिर अल्लाह ने मुझे दिखाया था काफी अर्सा पहले। तो फिर आप बैत तोड़ क्यों नहीं देते? तो फिर आप बैत तोड़ क्यों नहीं देते? तो मैं तो भाई आप सब सारी दुनिया को कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, अगर कोई नहीं, अल्लाह ने दिखा भी दिया आपको, फिर भी आप बैत में। सुन लो ना भाई, आपको नहीं सारी बात का पता, आप अपनी तरफ से बात कर रहे हो। नहीं एमएसआर साहब, वो आप सुना, आप इनको बताया ना, वो जो आपने ख्वाब नहीं देखा था वो मिर्जा मसरूर के बारे में खोते वाला, वो बताया ना। बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ जितने भी मजहब हैं, आज का दौर इंटरनेट का दौर है, हम एक प्लेटफार्म बनाते हैं टिकटॉक, आपकी यही टिकटॉक इसी के ऊपर सारे मजहब के बड़े बड़े जो हैं वो आएँ, अपने इनाम बताएं। अगर इनाम बताने के बाद भी नहीं समझ आती, फिर दुआ करेंगे। जिसके साथ अल्लाह कलाम करे, जिसको अल्लाह ताला बातें बताए, जिसकी ख्वाबें सच्ची हों, जिसकी दुआएं कबूल हों, जिसके पास अरबी में विर्द करने के लिए अल्फाज हों, वो अल्लाह का नबी और रसूल होगा, उसको मान लेंगे सारे। इस तरह से हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। अकल है तो आओ मेरे साथ, नहीं तो फिर सारे गधे हैं। अच्छा चीमा साहब, आपके साथ तो मैंने बात की थी, मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे ज्यादा इनाम याफ्ता हूँ। आपने कहा मैंने तुमसे बात नहीं करनी। इसकी क्या वजह है? एक होता आप है, भाग क्यों गए फिर? मेरे भाई, एक होता है खुदा का नबी हिजड़ा तो नहीं होता कि उसको पुकार ललकारा जाए तो वो भाग जाए। एक होता है घोड़ा, और अब गधा जो है ना खुद को घोड़ा कहने लग जाए। हाँ, तो तुम्हारे जैसा बिज्जू खुद को घोड़ा कहेगा तो उसको क्या कहेंगे? तुम्हारे जैसा बिज्जू अगर खुद को घोड़ा कहे मैंने तो आपसे तो फिर कहा क्या है, करेंगे? ऐसे बिज्जू को फिर हम जूतियां मारेंगे ना। मैंने आपसे कहा तुम्हारे है, जैसा बिज्जू अगर खुद को घोड़ा समझना शुरू हो जाए तो उसको क्या कहेंगे फिर? तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। जब तुम ललकार रहे हो लोगों को कि आओ मेरे साथ बात करो, मैंने कहा हाँ मेरे साथ बात करो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ बात करें। तुमने कहा नहीं, मैंने तुमसे नहीं बात करनी। इसकी क्या वजह है? ये हिजड़ापन तुम्हें बचपन से कहीं से मिला है या बाद में पैदा हुआ है? बता रहा हूँ ना, ये जो आप इसकी कोई दवाई तुमने इस्तेमाल की है? वो मर्दियों के नबी हैं, मर्दियों के वो नबी हैं। तो जरा तारक चौहान भाई उसने देखे अभी उसने ये कहा था कि मैं सबको कहता हूँ आए मेरे साथ मुकाबला करें ना। भाई मैं कहता हूँ मैं ज्यादा तुम्हारे से इनाम याफ्ता हूँ। तुम्हें कहते हो तो तुम्हें साबित कर देता हूँ कि तुम तो अल्लाह ताला की राह से धतकारे हुए हो, फासिक हो, अल्लाह रसूल के नाफरमान हो। तो इनाम तुम्हें कहाँ से मिल गया? एक फासिक जो अल्लाह रसूल का नाफरमान है उसको वो इनाम याफ्ता कैसे हो सकता है? आपके जो अल्फाज वो तो धतकारा हुआ है। आपके अल्फाज जो हैं यही बता रहे हैं कि आप अभी इंसान हाँ हाँ, तो तुम कौन से इंसान हो? तुम तो मुझे बिज्जू लग रहे हो। तुम्हारी आवाज से भी बिज्जुओं वाली आवाज है तुम्हारी। देखो ये आवाज कांपना, तुम्हारी आवाज बिज्जुओं से मिलती है। कोई जाके अपना अगर बिज्जू अपने आप को समझना शुरू हो जाए कि मैं कोई बहुत ऊंची चीज हूँ तो वो लोग तो उसको बिज्जू ही समझेंगे ना। ये उसके दिमाग का खलल होगा कि वो समझे कि मैं कोई चीज हूँ। मैंने तुम्हें यह कहा था कि मिर्जा साहब तो खुद कह रहे हैं कि जो मुजद्दिद का मुनकिर है वो फासिक होता है। अब तुम बताओ कौन सी सदी के सर पे तुम आए हो? तुम्हारा तो दावा ही नहीं कि तुम मुजद्दिद हो, तुम तो उसका इनकार करते हो। और नबूवत तो जारी नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इन्नहु ला नबी अबादी सयकून खुलफा फयक्सरून। नबी मेरे पास है ही कोई नहीं, खुलफा है। तुम तो अपने आप को नबी कह रहे हो। इसका जवाब ले लो, दे दो। आज के दौर में मुझे ला नबी आबादी के मतलब बता दिया है। जब रसूल करीम ने ला नबी आबादी कहा, उनको इल्म था कि मेरा मकाम क्या है। वो शरीयत लाने वाले आखिरी नबी थे, अब शरीयत वाला नबी नहीं आएगा। कहाँ उन्होंने ये बात कही है? तुमने अपनी तरफ से ये हदीस में ये डाल दिया है? मुझे अल्लाह ताला ने उन्होंने कहाँ लिखा है कि शरीयत वाला या गैर शरीयत वाला? उनका कोई नबी नहीं मेरे पास। तारक चौहान साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने बताया है। अभी तुम्हें अल्लाह ने बताया? किस अल्लाह ने बताया है? तो कोई बिज्जू तुमने बनाया हुआ जिसको तुम अल्लाह कह रहे हो प्यार से? आपके जो कोई बिज्जू है तुम्हारे पास रखा हुआ तुमने गार में, उसको कह रहे हो तुम्हें अल्लाह? आप नफ्से हमारा या में किसी चूहे को तुमने अल्लाह बनाया हुआ अपना? आप नफ्से हमारा में हो, आपको अल्लाह ताला ने भाई नफ्से हमारा में तो तुम हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया शरीयत वाला आ सकता है, गैर शरीयत वाला आ सकता है, जिल्ली बरूदी आ सकता है। कहीं कहा है उन्होंने? चलो एक मिनट, तमीज तो सीख लो यार बात करने की। तो तुम्हें तमीज कौन सी है? मैंने तुम्हें देखो, तुमने पहले भी ये कहा था मेरे साथ आके बात करो, मैं इनाम याफ्ता हूँ, किसी के पास ज्यादा इनाम है तो मेरे साथ बात करे। देखो जो मैंने कहा तुम मेरे साथ बात करो, तुम कहते हो नहीं मैंने तुमसे बात नहीं करनी। दूसरों को भी वैसे ही समझोगे ना। ये तो हिजड़ापन होता है। नहीं कह रहा आप मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं होता।
देखो ना, गधा जो है ना गधे को पहचानता अभी है। गधे तुम हो, मैं तुम्हें साबित करता हूँ कि तुम गधे हो। बिज्जू का है तो इसका गधे से भी बदतर हो तुम, बिज्जुओं से भी बदतर हो। मैं आपको एक गंदी नाली के कीड़े हो तुम, गंदी नाली के कीड़े। आप बिज्जू खुद बन गए हो ना। तुम गंदी नाली के कीड़े हो, साबित करो तुम गंदी नाली के कीड़े नहीं हो। अच्छा बताओ, अब ये गंदी नाली के कीड़े हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम साबित करो कि तुम नहीं हो। वालिद ने सिखाया था या वालदा ने बताया था आपको? तेरे फुफड़ ने मैंने सिखाया है। तेनू की ने सिखाया है कि तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गल करें, कि तू कह रहा नहीं ला नबी आबादी दा मैनू दसिया गया 1400 साल बाद। अच्छा, आप बदमाश भी हैं। खातमन नबीन जो है उनको नहीं बताया गया, तेरे जैसे बिज्जू ने दसिया गया। अब समझ आइए आप, मतलब जंबा अब समझ आइए कि तू बिज्जू है। जंबा साहब के मानने वाले बदमाश भी हैं। ठीक ठीक है। और तू हरामजादा है, तू हरामजादा है। मिर्जा साहब की अपनी कहने के मुताबिक तू हरामजादा है, क्योंकि तू सीधी राह से भटका हुआ है। अच्छा, एक हरामजादा अपने आप को घोड़ा समझ रहा है। आपके वालिद ने आपको वो बताया? कुत्ते से भी बदतर है। अच्छा, ये वालिद ने आपको बताया था? तेरे वालिद ने तेनू की सिखाया है? अच्छा, यही आपके वालिद ने? तेरे वालिद ने तेनू की सिखाया है? लोकां नू तू चैलेंज करदा फिरे, कोई तेनू आके कहे गल कर मेरे नाल, तू कह नहीं मैंने नहीं बात करनी। मैं आपको नहीं ये कह सिखाया रहा। तुम्हें? हिजड़ापन तुमने अपने बाप से सीखा है या अपनी माँ से सीखा है? मैंने आपको नहीं कहा। आप कह रहे हैं। हिजड़ापन तुमने बाप से सीखा या माँ से सीखा है? क्योंकि सिरात अल्लाह तुमने दीन नहीं कहा था मुझे कि मैंने नहीं तुमसे बात करनी। बड़े इनाम झूठे, याफ्ता हों मैं तो तुम्हें ऑडियो सुना दूं तुम्हारी। तुमने खुद कहा था कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी। लोगों को तुम कह रहे हो मेरे साथ आए मुकाबला करें, मैं इनाम याफ्ता हूँ। मैंने कहा मेरे साथ मुकाबला कर लो, मैं तुमसे ज्यादा इनाम याफ्ता हूँ। ग्रुप का तुमने कहा मैंने नहीं बात करनी। मैं इस बंदे ये से ग्रुप से बात कुत्तापन और करनी हिजड़ापन है। तुम्हारे भाई, बाप ने सिखाया जो तुम्हारी माँ ने आपको सिखाया? सबने सुन बताओ, लिया है ना। आप लोगों ये ने जो खुद हिजड़ापन फैसला तुम में करना है, क्या ये ये इंसान तुम्हें का तुम्हारी बाप ने सिखाया है, तुम्हारी माँ ने सिखाया है, ये या अभी कोई इंसान टीका की लगाया ना, मैं इस ग्रुप गैर में बात मर्दाना करना होने का टीका लगाया चाहता तुम्हें हूं, कोई? क्योंकि ये नफ्से हमारा में है। इस और बेचारे को नफ्से जो मुंह हमारा में दे हैं, चाचे, जो मुंह में आता है वो तू तो निकालते खुद जो कुत्ता ठीक है, से एक सुनता कुत्ता ही नहीं इंसान है फिर। तू। इसलिए मैं माजरत एक चाहता हूँ, मुझे कुत्ता इजाजत है। इंसान मैं है आपकी तरह जो नहीं लोगों बात को कर सकता। चैलेंज करता फिर रहा है और आगे भाग भी रहा है। फिर चलो करते जाओ, चैलेंज करके हिजड़ों की तरह तू भाग भी रहा है। करते जाओ। ये मैं गालियां नहीं दे सकता भाई। हाँ। और तू मेरे गालियां ना दे, तो है ही कुत्ते की औलाद। जिस जुबान से मैं अल्लाह अगर का नाम जो लेता हूँ, शख्स मैं चैलेंज सुबह करके भाग जाए उसके तो कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, क्या ये वो सुन्नत? जानवर से भी बदतर है। बयान कर रहे, ये सुन्नत है जो बिज्जू में बयान तो कर कोई रहे हैं। होती ये है जंबा रीढ़ साहब की हड्डी, तुम में तो वो भी नहीं है। ये जंबा साहब की तलीम है। ठीक ठीक। अब तो जंबा तुम्हें साहब किसने की तालीम दी है? बयान कर रहे तेरा बाप कौन सा था? हैं। जंबा जिस साहब बाप की ने तलीम तुझे बयान कर तालीम रहे दी है हिजड़ेपन की, वो कौन हैं। है? जंबा साहब की तलीम बयान कर रहे हो, सुन लो भी सारे। तुम जंबा साहब किसकी को तालीम मानो, बयान कर रहे हो? ओ हिजड़ों की औलाद, तू किसकी तालीम जंबा साहब को बयान कर मानो रहा है? जाके सारे इसकी ओ तारीफ करो। हिजड़े, ये बहुत अच्छा ओ बंदा है, हिजड़े, बहुत अच्छी किसकी बातें तालीम तू बयान कर रहा है? हिजड़े, इस्लाम की तबलीग कर रहा है। तुम तो ऐसे माशाल्लाह। बेशरम हो। आप तुम कहती हो तुम्हें हजरत ये मोहम्मद शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हाशिमा बता दिया गया है। रफीका, जो गंद का निकालेगा वो गंदों का रफीक हाँ, तो होगा, तू जो अच्छी बातें तू करेगा गंद अच्छों से का तू रफीक कट रहे होगा। हैं कुत्तिया। तू हजरत मोहम्मद आशिमा सल्लल्लाहु अलैहि का वसल्लम से तो रफीक गल है। कर रहे हैं। ला नबी आबादी उन्होंने समझाई नहीं क्या? तेरे जैसे एक गंदी नाली के कीड़े में समझा दिया गया है। मैं अल्लाह से जजा तेरे मांगता हूँ। जैसे मालिक गंदी नाली के दीन, कीड़े को ए अल्लाह ज्यादा तो बता मालिक दिया है, गया तो है। जजा देना, मुझे सब्र देना। कुत्ते से भी तो बदतर है। ये तुझे इंसान जो जजा नहीं कह मिलेगी, रहा तुझे है, जूतियां मिलेंगी, इसको इसकी जजा क्योंकि दे। हरामजदगी तुमने या शुरू की है। इलाही, इसको हिदायत दे। ये हरामजदगी इंसान शुरू बन करने जाए वाले को जजा नहीं मिलती, उसको तो जूतियां बहुत मिलती रहम है करने वाला है। जो इसको पढ़ रही है हिदायत तुम्हें। दे, ये इंसान बन जाए। या इलाही, हाँ, इंसान तो बन जाओ या इंसान। इलाही, मैं इसके लिए दुआ कुत्तों की करता वाला हूँ। हरकतें ना करो। ये बंदा हरामजदगी है, छोड़ दो, कमजोर है, ना समझ है, हरामजदगी इसकी छोड़ दो। तरबियत नहीं हुई, ये भी तुम इंसान एक नहीं है। हरामजादे हो जो सीधी राह से भटके हुए हो। तो बहुत प्यारा है, तो बहुत रहम करने वाला है, तो इस पर हाँ, रहम चलो तू मेरे रहम प्यार करने वाला है। इस हरामजादे को अकल अता अल्लाह कर इसकी रहम, कि इस पे ये रहम। नबियों के ऊपर बकवास कर रहा है। नहीं ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜੀ ਰਾਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ ਰਾਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ 1 2 3 ਗੋ कोई कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहा। ਦੇਖੀ ਛੁੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੀ कनेक्शन जुड़ नहीं रहा सही तरह। ਵੱਡ कनेक्शन जुड़िया ਲੈ ਮਿਊਟ ਲਾ ਮਿਊਟ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਜੰਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ? ਲਾਨਤੀ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਲਾਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗਾਲਾਂ ਹਟ। ਲਾਨਤੀ ਇਨਸਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਐਸੇ ਖਬੀਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਜੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹਰਾਮ ਤੂੰ ਹਰੀਮ ਖੋਰਾ, ਤੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਲਾਂਤੀ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੰਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਬੁੱਢਾ ਬਾਂਦਰ ਐਸਾ ਬੁੱਢੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਇਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੁੱਢੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੁੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। मशीना यार गर्म ये तबलीग है है। मर्जियों की, यार ये तबलीग है मर्जियों की। अस्तगफुरुल्लाह। तबलीग है मिर्जाइयत नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जब इसने कहा था ना, ये MS जो है, कहता है मुझे सबसे ज्यादा इनाम मिले हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कोई शख्स मेरे सामने आए और बताए। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ तू तो इनाम याफ्ता मैं है। कहता नहीं मैं तुमसे बात नहीं करनी। तो मैं लो कोई जी, हिजड़ा पाल तो बहुत पहले ही ही है। बड़े मुबल्लिग, बहुत ही दाइलुल्लाह खसूसी मैं इनवाइट ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਰਬੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ MSR ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। MSR ਨੂੰ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਯਾਰ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਜੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। यार कोई राणा राशिद साहब को शेयर करे प्लीज ब्रॉड, मुझे पता करना है कि क्या चल रहा है फिर मैंने सेंड की है अभी उन्हें रिक्वेस्ट। नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि अहमदी के ऊपर कोई मुसलमान आज के बाद एतबार ना करे, कभी किसी अहमदी को कोई जज ना बनाए, कभी किसी पंचायत में ना बिठाए। मतलब ये तो बिन पैंदे के लौटे हैं, इसका मतलब है। इनके तो बिल्कुल ही पल्ले ही कुछ नहीं, इनकी ना जुबान है, ना इनकी में गैरत है, ना कोई स्टांस है। क्या लोग हैं यार। माफी का मुतालबा था और खुद दर पे जाके माफी मांगने को तैयार बैठे। शर्म का मुकाम है, मर जाना चाहिए इस जिंदगी से। तो मैं तो खुद कह रहा था मैं मिर्जा मसरूर की बहस में हूँ, मिर्जा मसरूर बिल्कुल ठीक है, वो खलीफा है खुदा के। नहीं, इसने लेटर लिख दिया मिर्जा मसरूर को कि मुझे अल्लाह ने कर दी, बना दिया नबी ਤੇ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਲੀਫਾ की इजाजत के बगैर। ਯਾਰ ਅਜਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਆਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖੰਜ਼ੀਰ, ਕੁੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਖੁਤਬਾਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਲ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ਿਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗਾਲਾਂ 'ਚ। अच्छा जी, तो अंडरवर्ल्ड साहब को कर लेते हैं, ये भी दालिला खसूसी है। अंडरवर्ल्ड ही जड़ा अपने खलीफा की तरह ऊपर नहीं आएगा, नीचे से बकवास करता रहेगा। ले जी, आ गया फिर जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे प्लीज स्क्रीन पे कर दे। एक सेकंड। अल्लाह, ओए होए होए होए। जी अंडरवर्ल्ड साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फिट जी, आप कैसे? ठीक ठाक है जी। आप मिर्जाइयत का पैगाम दें यहाँ पे। चौहान साहब थे उनको मौका तो दें, वो डिफरेंट किस्म के इंसान है वो। जी क्या हाल है सीकर साहब, ठीक हैं? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है मौला का, जिस हाल में भी रखता खुश है हम।
अच्छी बात है। बताएं कोई अच्छी अच्छी बात, कोई बताएं कोई, मैं तो सीखने यार आया ये हूँ। क्यों वैसे दी आपकी जमात जो है, वैसे मैं आपको सीरियसली, आप शायद पहले भी आपकी मेरी बात हुई कि क्या होता जा रहा है अखलाकियात को जमात अहमदिया की, आप देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। किस जगह पे? मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें, एक मिनट, ये वाटर साहब को ऊपर ले। अभी आपको मतलब आप देख रहे हैं ये रहील साहब आए हैं, आके गाली दे के चले गए। वो नासिर भट्ट है, वो उधर वो क्या क्या नाम है इनके, वो कभी अपने अहमदियों के गलों में पटा डाल के उनको कभी सूअर के ऊपर लगा रहे हैं, कभी गधों के ऊपर लगा रहे हैं, पता खवातीन क्या, को मैं नंगी तो गालियां। सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, देखो आप सब लोगों ने, मैं लंबे अरसे से देख रहा हूँ, सब ने इकट्ठे ही बैठना होता है अक्सर जगहों पे, यही है ना। तो थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और एक दूसरे का इतना लिहाज करना चाहिए। तो थोड़ा एक दूसरे के लिए टॉलरेंस रखें, इख्तलाफ करें, सख्ती से करें, जैसे भी करना, जितना मर्जी करें, लेकिन नहीं आपकी बात ठीक है। अब आप देखो ना, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब ये जो हम आहंगी जिसकी आप बात कर रहे हो वो यही है ना भाई। क्या होता है टॉलरेंस और स्पेस, क्या होती है, अच्छे रवाबित यही होते हैं कि राना राशिद साहब के साथ एक मसाइल हुए, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये मजहबी ब्रॉड नहीं कर रहा। अब जब उन्होंने मजहबी ब्रॉड नहीं कर रहे, हमारे भाई गए वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए, इंसानियत के नाते कि यार मजहबी बात तो नहीं है, हाँ पीपल टू पीपल, इंसानियत के नाते हम आपके साथ खड़े हैं। आमिर नजीर भाई गए उधर, वो आके हर बंदा इनको गालियां देने लग गया। यार अब ये क्या स्पेस है, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नहीं, गाली तो रात इतनी बिल्कुल गालियां नहीं, निकाली। गाली तो हाँ बिल्कुल ही नहीं। देखें किसी भी महफिल में बैठे हों, वो कहते हैं कि इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है। हाँ तो जो मीठा दरख्त होता है उसका फल हर कोई खाना चाहता है। तो इस तरह का माहौल पैदा करके तो किसी को भी फायदा नहीं, ना आपको फायदा ना हम लोगों को फायदा है। तो बेहतर यही है कि किसी अच्छे तरीके से, आप बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको इन पर्सन आप जानते होंगे हमारी तरफ से, तो मुझे तो ये पसंद नहीं है कि ये हर रोज़ की लड़ाई, कभी कोई मसला लेके कभी कोई। मैं जितना मैंने स्टडी किया, जितना मुझे पता है, इख्तलाफात इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने मैंने टिकटॉक पे आके देखे हैं। मैं प्रैक्टिकली लाइफ की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, उधर बचपन उधर गुजरा है, तो क्रिकेट भी खेल ली, दोस्त भी थे, वहाबी भी दोस्त थे, शिया भी थे, बरेलवी थे, सारे थे, लेकिन एक दूसरे के लिए टॉलरेंस थी। मुझे तो आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। इधर मैंने टिकटॉक पे आके देखा है कि बहुत ज्यादा ना एक दूसरे से नफरत है। यार और मैं आपको वैसे समझता हूँ, अंडरवर्ल्ड क्या लगता है, क्या वजह है इसकी, क्या वजह, क्या आपको आज दिल से बताओ, कोर वजह क्या है, आपने देखा मैं ही है समझता सारा हूँ ये कुछ। सॉरी, मैं समझता हूँ कि मिसकम्युनिकेशन या थोड़ा, यार मैं समझता हूँ कि बेहतर माहौल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। मैं किसी की साइड नहीं लेता, ना अपनी दूसरी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ आप लोग हमारी तरफ आए, हम लोग, सॉरी मेरा अभी थोड़ा गला खराब है, कर कोई मैं मसला नहीं। नहीं मैं ये चाहता हूँ कि मिसकम्युनिकेशन दूर कैसे होगी, आप सोचे ना, देखे फर्ज करें भाई हमारी, मेरी और आपकी मिसकम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, अब हम लोगों ने मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मैंने आपकी बात गलत समझ ली, आपने मेरी गलत समझ ली, हमें दूरियां पैदा हो गई, हमने एक दूसरे को खिलाफ बोला शुरू किया। ये दूर कैसे होगी, दूर तब होगी जब बात होगी। अब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड भाई मसला ये पैदा हो गया है, इधर जो मुबल्लिगीन है ना, जो जमात अहमदिया के, जो समझ लेके, जो फिर भी जवाब देने का हमें लगता है कि शायद वो दे देंगे जवाब किसी बात का, उन्होंने एक बहाना बनाकर कि ले जी फलाना गालीबाज है, फलाना गालीबाज है, फलाना गालीबाज, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा नंगी गालियां वो खुद निकालते हैं। तो यार ये तो आपकी जमात मेरे ख्याल में बहाना मार रही है, इसीलिए मिसकम्युनिकेशन है। नहीं ऐसी, पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हाँ मैं कोई गलत बात आपको करूंगा ना, तो आप मुझे कोई वो ऐसे ही कर लो, उससे थोड़ी सख्त कर लो, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जो आपके काबरीन है, जो वही हमारे हैं, ठीक है। हाँ जहाँ पे डिफरेंस है, जिनको आप नहीं मानते, मैंने अक्सर देखा है, बड़ी दफ़ा देखा है कि बात छोटी होती है लेकिन फौरी तौर पे आके उनकी कोई भी बात हो उसको घुमा के तो दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये बेसिकली देखें, मैं जंबा साहब हैं, मैं समझता हूँ यार वो बैठा हुआ है, वो मानते हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनका दिल दुखे।
تو جب آپ اٹیک ہی ایک آفرین پہ کرنا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک وجہ ہے. تھوڑا سا ایک دوسرے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں میں آپ کے ساتھ جتنی جاتی کرتا ہوں آپ تھوڑی میرے سے کر لیں، ڈائریکٹ ہی کر لیں، مجھے گالی نکال لیں جیسے بھی کہنا ہے. لیکن معاملات جو ہے نا بہت آگے جا چکے ہیں، بات بات پہ گالیاں، لکھنے میں گالیاں، بولنے میں گالیاں، ایسے بیٹھنا ادھر ہی ہے، وہی لوگ ہیں سال پہلے جو ادھر تھے وہی آج بھی ادھر ہی ہیں، مناظرے بھی ہونے ہیں، بات بات چیت آپ بھی کی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں کل کی بات بتا دیتا ہوں. کل دیکھے نہ ہم تھے اور نہ ہی کوئی ہمارا بھائی اوپر تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 احمدی تھے، ایک احمدی دوسرے احمدی کو گالیاں دینے لگ گیا. اس نے کہا تم یہ مرزا صاحب کی تعلیم پیش کر رہے ہو. تو اس نے آگے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کر دیا. تو وہ سنا ہی ہوگا آپ نے. نہیں میں نے نہیں سنا. ہاں اب بتائے بھائی یہ کیا ہے؟ مطلب اس میں کو ہم بیچ میں آئے ہیں. ایک احمدی نے کہا دوسرے احمدی کو کہ تو مرزا صاحب کی تعلیم پیش کر رہے. اس نے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ساتھ صاحب کہہ کر وہ بات کی، اور بعد میں 5-6 دفعہ صاحب کہتا رہا. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی محفل میں یا کسی جگہ پہ یا ٹک ٹاک پہ اگر آپ کوئی صحیح رنگ میں تھوڑی علمی بات کریں گے نا، بے شک میں اکثر سنتا ہوں، میں نیچے رہتا ہوں، میں اوپر نہیں آتا. اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے بے شک مخالف کر رہا ہے یا اپنا کر رہا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے ادھر اگر ہم بیٹھے نا علمی ماحول میں تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن ہر بات پہ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کے لیے بھی بہتر ہے یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. یہ تو صرف وقت کا ضیاع ہے. نہیں نفرت تو دیکھے نا جی، انسان سے نفرت تو ہوتی نہیں ہے نا. لیکن انڈر ورلڈ بھائی آپ یہ بتاؤ نا، دیکھو یار آپ بھی تھوڑی سو آپ وہ رکھو، ہمارے لیے تھوڑا سا انصاف کرو کہ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم یہ سنیں یا ہمیں یہ پتہ چلے کہ احمدیہ جماعت کے جو لوگ ہیں وہ مرزا غلام احمد صاحب کو رحمت للعالمین بھی مانتے ہیں، وہ مرزا صاحب کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ مرزا صاحب کو کلمہ میں بھی شامل کرتے ہیں، محمد کے مفہوم میں لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کے مفہوم میں لیتے ہیں. جب یہ باتیں ہمیں پتہ چلے تو انڈر ورلڈ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں. وہ نفرت یہ نہیں، انسانوں سے کیوں نفرت ہونی بھائی، لیکن وہ عقائد کچھ ایسے ہیں. آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. ہاں میں نے آپ کو بھی سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اوروں کو بھی سنا ہوا ہے. جی جی. آپ نے سلیکٹڈ وہ جو چیزیں آپ پیش کرتے ہیں یا ان سوال کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً ان کا جو فارسی کلام ہے بہت ساری، یا عربی کے اندر یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں سنا کہ کسی مخالف نے وہ چیزیں پیش کی ہوں. ان چیزوں پہ کیوں نہیں بات کرتے تاکہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں. آپ تو اپنی سائڈ سے کرتے ہیں نا. تقریباً 1600 پیج. میں سمجھا نہیں آپ کی بات، فارسی والی کیا بات کی آپ نے؟ میں سمجھا نہیں، فارسی یا عربی کا کلام کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 1600 صفحات ہیں فارسی، عربی اور اردو کے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مخالف نے وہ چیزیں پیش کی ہوں، کبھی نہیں. کیوں؟ صرف وہی کہ جو سلیکٹڈ ہے یا جن پہ جو آپ سمجھتے ہیں. نہیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ کسی نے وہ پیش نہیں کی؟ مرزا صاحب کی عربی عبارات کے اوپر میں نے کبھی نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں سنتا رہتا ہوں، سب کو سنتا ہوں. یہ ابھی سن لیں جی، آپ کچھ بھی نہیں سنتے رہتے ہیں، لگے ہوئے ہیں. ابھی سن لیں، آپ کو عربی کی سنا دیں. تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المودۃ والمحبۃ الا ذریۃ البغاء وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغاء. کریں جی، پیش کریں، بتائیں اس کا کوئی جواب دیا ہے آج تک؟ ہاں جی. اچھا میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں. میں اب ونڈربرڈ بھائی بتاؤ، میں سیریس ان الاعداء صنازیر الفلا ونساؤہن من دونہن الاقلب. کیا جواب ملا جی؟ میں بتاتا ہوں. اب بتاؤ کوئی بتائیں نا، آپ ان دونوں کا کیا جواب؟ صرف دیکھیں، انڈر کیا نام ہے آپ کا، انڈر ویو یا کیا نام ہے، انڈر واٹر. میں یہ انڈر ورلڈ، میں یہ نہیں آپ سے کہتا کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے، ہمیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے. صرف اتنا بتا دیں ان دونوں باتوں کا کیا جواب دیا ہے آپ کی جماعت نے آج تک.
बस जवाब बता देंगे भाई ये जवाब देते हैं, हमें मंजूर और नामंजूर अलग बात है। उनकी अपनी किताबों के अंदर ही सारे जवाब लिखे हुए हैं। बता दे इन्नल अदा सारू खनाजिर अल फला वलिसा उन्ना मिन दूनहिन्ना इल्लल अक़लब, इसका क्या जवाब है? तिलका कुतुबुन यंजुरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बिअैनिल महब्बति वल मवद्दति वजंताफिउहा मिन मआरिफ वजंताफिउ मिन मआरिफिहा वयकबिलनी वयस्दिकु दावती इल्ला ज़ुरियतुल बगाया। अच्छा मेरी बात सुनो, आप कहते हो ना कि वो अपने आप को खातमुन नबीन कहते हैं, और नहीं यार मैंने सवाल ये मसला है ना आप लोगों का। अच्छा ये नहीं पहले सिर्फ मैं आपको सारा बताता हूं, मुझे इतना बता दें। आप कहते हैं कि जी सिलेक्टेड चीजों पे बात होती है, मिर्जा साहब पे बस इतराजात करने होते हैं, सिलेक्टेड चीजें हैं। आपने अरबी इबारत, मैंने 2 अरबी इबारत रखी हैं। अच्छा डॉक्टर डेविन साहब मुझे ये बता, मैं भी आपसे पूछता हूं मेरी अंडरवर्ल्ड भाई अंडरवर्ल्ड पहले मुझे जवाब दे दें, आपका चूंकि इतराज था ना तो फिर मुझसे सवाल करें, जवाब ले लें। आपने अरबी की बात की थी, उन्होंने अरबी की इबारत पेश की। अगर आपको बात सुने मेरी गौर से, अगर आपको नहीं फर्ज करे समझ आई ना, मुझे भी इस पूरी अरबी की समझ नहीं आई, ये कुछ अल्फाज समझ आए, मैं भी कोई अरबीदान नहीं हूँ, तो मैं भी पूछ लेता हूँ, आप भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, एतराज क्या है, बात क्या है, आपको खुद समझ आ जाएगी कि भाई इसके अंदर मैं से लेके मैं खुद स्टडी करके मुझे इतना शौक है कि मैं उसको बयान कर सकता हूं। साहब मैंने आपको थोड़ा सा तेज कर देना है तो आप बाद में बात कीजिएगा, बेचना ना चलते मशीन चाहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मुझे भी बात करने दो। हाँ जी बता दें, ये अंडर वाटर साहब आप बताइए, तीसरा बता देता हूं, इन्नमा नरुद्दु सब्बत साबिना अला वजूही। डॉक्टर डेविन साहब मेरी उस स्पीकर से बात हो रही थी तो मैं उसी पे बात करना चाह रहा हूँ, आप बीच में आ गए हैं। नहीं देखिए आप आ जाते हैं इधर बहुत मासूम बन के। नहीं आप मुसलमानों नहीं जाते, मेरी उनसे बात हो रही है तो प्लीज मुझे उनको ठीक है, आप आए, मैं आने से मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपने ऊपर लिबादा हो रहा है ना, नहीं लिबादा मैं आपको बयान करता हूं, शरीफ है, ये ऐसे अल्फाज नहीं यूज करो हो रही है, ये गलत बात है ना। अच्छा एक सेकंड अंडरवर्ल्ड भाई ठहरिएगा जरा, अंडरवर्ल्ड ज़िया भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑडियंस भी सुन रही है, जरा इसको उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें जो आपने पढ़ा। नहीं उर्दू में सीखने भाई क्या मतलब क्या उर्दू में क्या एक्सप्लेन करें? एक मिनट, ये तीसरी बात ये है, जो बात एक मिनट की बात सुने अंडरवाटर साहब, एक मिनट माइक मौका भी देना, मौका भी दे, आपके आता हूं मैं, अगले बंदे को बोलने दिया करें ना, या तो टाइम रख लें, आप 1 मिनट बात कर रहे हैं 1 मिनट में, मसला ये है मेरी उस सीकर से, मैं सीकर की वजह से ऊपर आया, उससे बात कर रहा था, ठीक है मेरी उससे बात होने चले यूं करते हैं, टाइम लगा लेते हैं ताकि इंटरप्शन ना हो। मैं पहले ज़िया साहब को सिर्फ मैंने एक सवाल उनसे पूछा है, इसलिए एक सवाल का जवाब उनसे ले लो। हाँ जी ज़िया भाई, असल में बात ये है कि भाई उर्दू बताने में मसला कोई नहीं है, मसला ये है या तो ये अंडर वाटर साहब यहाँ पे इकरार कर लें और कह दें कि मैंने एमी हवाई छोड़ दी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या मबाहसात होते हैं मुसलमानों के और इन कादियानियों के दरमियान, क्या टॉपिक्स हैं, क्या झगड़े हैं, क्या मामला, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, मैंने एमी एक हवाई छोड़ दी है, या तो इस बात का इकरार कर लें। अगर इन्होंने एक ऑथेंटिक बात की है, देखिए इतने लोगों के सामने आमन नज़ीर भाई बैठे, हमारे मोस्ट सीनियर जो हैं वो हैं जनाब मेंबर्स में से, और सबके लिए रिस्पेक्टेड हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने अपनी दाढ़ी सफ़ेद कर ली है, क्या ये सारी ज़िंदगी सिलेक्टेड 2-4 चीज़ें रट्टे मार के या नकलें मार के तो ये कादियानियों के सामने पेश करते रहे? इनको नहीं पता अरबी में क्या मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, फ़ारसी में क्या मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, पंजाबी में क्या मिर्ज़ा साहब ने लिखा है? मतलब हम पागल हैं, हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि हमें तो आता पता है कुछ नहीं है, बस सिलेक्टेड 2-4 चीज़ें हैं, हम जो अहमदियों के सामने, ये क्या कहना चाहते हैं? मतलब यही कहना चाहते हैं ना कि भाई आप लोग जो हैं ये ज्यादती कर रहे हैं जमात अहमदिया कादियानिया के साथ, आप लोग मिर्ज़ा साहब पर गलत एतराज़ात करते हैं, आप लोगों के पास जमात के खिलाफ, मिर्ज़ा साहब के खिलाफ या अपने बयानिए के हक में कुछ भी नहीं है सिवाय 2-4 ये चीज़ें हैं बस। और जो अरबी का उनका लिटरेचर है, मिर्ज़ा साहब को अरबी आती थी? बताएं ज़रा मुझे, कितनी अरबी आती थी मिर्ज़ा साहब को? ठीक है, इसके 2 मिनट हो गए हैं, अच्छा मुझे नहीं पता टाइम पर ध्यान दिया, इनको बोलने दें, हम टाइम दें। 1 मिनट, अब मैं आपके 2 मिनट लगा रहा हूं मैं, 2 मिनट, ठीक है आप ये ले करें। अच्छा जी, बात मेरी हो रही थी सीकर साहब से, ये डॉक्टर डेरिन साहब जो ये बीच में आ गए हैं तो अरबी के उन्होंने अल्फाज आगे बयान कर दिए कि जी इसका मतलब बताओ सारा कुछ। मेरी बहुत सीकर से बात हो रही थी, एक आम गुफ्तगू हो रही है, कोई मुनाजरा नहीं हो रहा। इनको मैंने ये कहा था कि वो चीज़ें नहीं पेश की जाती जो इनका बहुत लंबा काम है, मसलन उनकी जो ये कहते हैं ना, वो खुद को कहते हैं मोहम्मद। मिर्ज़ा साहब ये फरमाते हैं कि अजब नूर यस्त दर जाने मोहम्मद, अजब लाले अस्त दर काने मोहम्मद।
अजब दारम दिले आन नाकसाना के रूहे ताबिंदे अज ख्वाने मोहम्मद दादम हिच नफ्से दर्द वालम के दारत शौकत व शान मोहम्मद। जिधर मोहम्मद का लफ्ज़ है उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा साज जीना बिजार अस्त सद बहार के हस्त अज कीना दाराने मोहम्मद खुदा खुद सोजा आकर किरनदानी रा के बाशत अज अदवाने मोहम्मद। ये एक लंबी एक नज़म है, मैं सारी नहीं पढ़ता। कभी किसी ने बयान किया क्या है इसका मतलब? बताओ, मैं बताऊं क्या मतलब है इसका? अच्छा आप चुप रहो, मेरे टाइम नहीं आप बोल सकते। सखी भाई दोबारा लगाओ टाइम, दोबारा लगाओ, ये नहीं बोल सकता। फारसी भी बात करें, फारसी भी बात करें ना। सखी भाई उनका टाइम, अच्छा सखी भाई उनका टाइम चल रहा है। वो फरमाते हैं आगे कि अगर ख्वाही निजात अज मस्ती नफस ब्या दर जीले मुस्ताने मोहम्मद, अगर ख्वाही के हक गुवीद नसरायत बशु अज दिले सना ख्वाने मोहम्मद, अगर ख्वाही दिले आशिकश बाश मोहम्मद हस्त बुरहाने मोहम्मद, सरे दारम फदाए खाके अहमद दिलम हर वक्त कुर्बाने मोहम्मद। अब ये देखें वो क्या फरमाते हैं कि मेरा सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक पर निसार है और मेरा दिल हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान रहता है। अगर तू उस सच्चाई की दलील चाहता है तो उसका आशिक बन जा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुद मोहम्मद की दलील है। अगर तू चाहता है कि खुदा तेरी तारीफ करे तो तू तहे दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुदाह ख्वां बन जा। कभी किसी ने ये चीज़ें पेश की हैं? ये मेरा मकसद था। बहुत शुक्रिया जी ज़िया भाई, आपके पास टाइम लगा। ज़िया भाई मुझे एक मिनट दे सकते हैं? सखी भाई एक मिनट मौका दीजिएगा। सखी भाई कर लेने दे मेरे टाइम में से देने को बात करनी चाहिए। फारसी में उसने लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम फौत करद maar बजाय शामदम। Tell me the meaning of it. बिल्कुल ठीक। You want to talk Farsi? We're going to talk Farsi now. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajoish Muhammad nauzubillah. Give me the meaning of it. Go ahead. Man qalb Muhammad shudam nauzubillah, mani shudam, manu shudam nauzubillah. ये जो ये कह रहा है ना, दूसरे पेज में देखो क्या लिखा है उसने, उस पेज में क्या लिखा है उसने। फारसी जो इसने फारसी में लिखा है ना, वो एक काफिर भी नहीं लिखता इस जो इसने लिखा है। चले ठीक है सखी भाई, ठीक होगा जी ज़िया भाई। You want to speak Farsi? I'm going to talk to you in Farsi, man. I'll bring you his lecture in Farsi. I'll bring you his writings in Farsi. You want to see it? बिल्कुल सही है सखी भाई, पहले अरेबिक कर ले फिर उस पे पर्शियन पे आते हैं। जी ज़िया भाई आपके 2 मिनट। ठीक है जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपके 2 मिनट शुरू। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये देखें ये मुझे इन लोगों की इस बात की समझ नहीं आती आज तक। मैं भी आपको मिसाल ही दे देता हूँ, क्योंकि मिसाल के बगैर इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। मिसाल ये है, मिर्ज़ा साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे और उनका बड़ा मुकाम था अपने अल्ले महल्ले में, माशरे में, और उनको फ़ारसी बहुत आती थी, पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते थे, बड़े खूबसूरत थे और बहुत उन्होंने मनाजरे किए हैं। ये ज़िया रसूल का बयान है। अब दूसरा बयान सुने जी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादिर एक कज़ाब और दज्जाल, झूठा, लानती इंसान, खबीस इंसान था, बदबख्त था, जानी था, शराबी था, चूड़ा था। वो हरामी जानी ये जुबान इस्तेमाल करनी है, खबीस इंसान है, ये करनी है तुमने? कहते हैं नहीं मेरी बात सुनो, एक मिनट ये जवाब आ गया ना आपको? नहीं ये जुबान तुमने करनी है, ये तुम्हारे लिए ये मैंने की थी। माइक बंद करो, बस जो मैंने करना था कर लिया। बदतमीज घटिया इंसान है, अब सुने, बेशर्म इंसान, तुम्हें बात करने के लिए ये रखा हुआ है। सुनो, अब सुने, मैं बताता हूँ आपको। आपने कहा मिर्जा साहब ने नबी पाक मैंने आपसे कोई गलत बात की है, कोई ऐसी बात की है जो इसने बकवास शुरू कर दी है? वो गलत बात की है। नहीं ये क्या है, तुम भौंकना शुरू कर दो तो मैं आगे से खामोश हो जाऊं। सीकर मेरे तुम्हारे से बात हो रही थी, ठीक है सीकर, मैंने कभी आज तक कभी तुम्हारे से पहले बात हुई है, कभी ऐसे मैंने किए हैं अल्फाज यूज? यार मुझे बेशरम बेहिया इंसान, मुझे जरा बात, एक मिनट बोलने दे सीकर भाई, बोलने दे। नहीं चले आप चलो पूरी बात पहले करो। सीकर आपकी बात से मैं करूंगा, ठीक है? मैं इससे मैंने बात नहीं करनी खबीस इंसान से। हाँ ठीक हो गया, हो गई जी बात। चले अब ये नीचे बैठ के सुनेगा, मुझे बात अब करने दे। अब देखें, सारे लोगों ने ये नज़ारा देखा। आर्गुमेंट क्या था इस बंदे का? आर्गुमेंट ये था कि मिर्जा साहब की सिलेक्टेड चीज़ें पेश करते हैं, लेकिन जहां मिर्जा साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकौल इस बंदे के तारीफ किया, वो पेश नहीं करते। मैंने ये जो काम किया क्यों किया? ये बताने के लिए किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती
وہ مبارک ہستی یہ سیکر ضیاء رسول عامر نذیر نہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کر بھی لوگے تو بعد میں کہہ دو گے کہ یار مجھ سے کوئی نہیں، بس ہو گیا اونچ نیچ، نہیں سیکر بھائی آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں تو معاملہ برابر ہو جائے گا. نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے، ساری زندگی آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال دے، 99 سال آپ ان کی تعریف کریں، 1 سال کے 1 منٹ میں توہین کر دیں، وہ ساری کی ساری تعریف آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدترین توہین کی ہے کہ جو آج تک کسی بڑے سے بڑے شاتم نے نہیں کی، اس کو چھپانے کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ فلانی کتاب میں مرزا صاحب نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. یہ تب کی باتیں ہیں جب مرزا غلام احمد قادیانی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کی آیات لکھ لکھ کر کہتا تھا وہ حجات ہیں دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ تب کی باتیں ہیں جو قادیانی ہمیں بتاتے ہیں. جب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا نبوت بند ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، جب وہ کہتا تھا میں معجزات کا انکاری نہیں ہوں، یہ تب کی چند ایک باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں، پیش کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بڑی تعریف کی ہے، مسلمان بڑا دھوکہ دہی کے سے کام کر لیتے ہیں اور بڑا ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. کیا فراڈ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ باتیں نہیں پیش کرتے. اچھا ان باتوں کو یہ جو چند اشعار مرزا صاحب نے لکھے ہیں، یہ باتیں لکھ دینے سے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ یہ بائبل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارق لیت آیا ہے اور کہتا ہے فارق لیت 2 الفاظ کا مرکب ہے، فارق اور لیت شیطان کو کہتے ہیں. یہ تحریر مٹ جائے گی مرزا کی نعوذ باللہ. نقل کفر نباشد لیت شیطان کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارق لیت بتا کر اس نام کے 2 حصے کیے اور ایک حصے کا مطلب بتا رہا ہے کہ اس کا معنی ہے شیطان. لیت شیطان کو کہتے ہیں. اپنے بارے میں دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی درست کیے بنا اسی غلطی پر فوت ہو گئے. وہ اپنی غلطی پر فوت ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بارے میں کیا دعویٰ ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا، میں اصل قرآن لے کے آیا ہوں، اب جو میں بات بیان کروں، جو میں قرآن کے معنی بیان کروں وہی معنی ہوں گے. حدیث تک کہتا ہے میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا جو میرے الہام کے خلاف ہوں گی. مرزا غلام احمد قادیانی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کی ہے. کہتا ہے کہ جب آیت سیہزم الجمع نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب تک اس کے معنی معلوم نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ خرافات کیا کوئی مسلمان برداشت کرے گا کہ صاحب قرآن ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو تا قیامت نہ صرف اس قرآن کے ذمہ دار ہیں بلکہ اس قرآن کی تعلیمات عوام الناس تک پہنچانے، ان کو سمجھانے کے جو ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وارننگ کے فرمایا ہے، اور یہ نہ صرف وارننگ بلکہ اس بات کی اتھینٹیکیشن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا صحیح معنی مفہوم بتانے میں کوئی کمی کوتاہی نعوذ باللہ نہیں کی ہے. کمی کوتاہی کا تو لفظ ہی ان کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان پر آیت نازل ہوئی اور ان کو معنی نہیں پتا، اور اپنے بارے میں کہتا ہے جو میں مفہوم قرآن کا بیان کروں گا نا اس کے سامنے حدیث بھی آ جائے گی تو میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا. یہ خرافات مسلمان برداشت کریں گے؟ اس کے سامنے لا دو. یہ فارسی کے شعر کیوں نہیں پیش کرتے؟ میں نے جو کام کیا کہ بھائی میں نے اسی زبان سے مرزا غلام قادیانی کی تعریف میں چند الفاظ کہے، اور جو ہی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اصلیت بیان کی وہ کذاب اور دجال تھا، اس کو آگ لگ گئی اوپر نیچے سے. ضیاء بھائی ٹھہرے ذرا کتنے خوبصورت شعر پڑھے نے بھائی نے پڑھے تھے انڈر ورلڈ بھائی نے. انڈر ورلڈ میں سن رہے ہو آپ نے کہا آپ یہ کیوں بیان نہیں کرتے، آپ وہ والی سائڈ کیوں نہیں دکھاتے کہ وہ دلبر میرا یہی ہے اور وہ یہ سب. یہ ذرا انڈر ورلڈ بھائی یہ سنیے گا ذرا، یہ بھی تعریفی کلمات لیتے جائے. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہمیں اور آگے سے
हाँ जी, अब बताओ क्या हाँ जी, करें। हाँ जी, फारसी कलाम कह रहे थे, सुने मिर्जा साहब का फारसी कलाम कहता है, मनम मसीह जमा व मनम कलीम खुदा, मनम मुहम्मद व अहमद के मुजतबा बाशद। ऐ नहीं कहते सुना है जी फारसी का कलाम मिर्जा साहब दा। आप कहते हैं जी फारसी के कलाम में बड़ी मिर्जा साहब ने तारीफ की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तारीफ है, इसको तारीफ कहते हैं आप? मैंने तारीफ के कलमात आपके सामने कहे, बोले, हालांकि मुझे वो गवारा नहीं है, मैंने आज तक कभी ये अल्फाज मिर्जा साहब के बारे में नहीं कहे जो आज मैंने आपके सामने कहे हैं। भले बात समझाने के लिए भी, मैं तो इसको भी बड़ा जुर्म समझता हूँ, लेकिन बात समझ में आ गई है कि एक बंदा अगर एक जुबान अपनी जुबान से तारीफ के चंद कलमात कह दे और उसके बाद दे गालियां, तो वो गालियां तारीफ के कलमात के पीछे नहीं छुप जाती, बल्कि काउंट वो होगा कि इस बदबख्त ने गालियां दी हैं। आप ऐसे तड़पे हैं जैसे आपको 440 वोल्ट का करंट लगा है। आपको समझाने के लिए मैंने ये काम किया है। मैंने आज तक, मैं तो मेरी ज़बान जल जाए मैं मिर्ज़ा साहब के बारे में तारीफ़ी कलमा कहूँ, मेरी ज़बान जल जाए, मेरी नस्ल में से भी ऐसा बदबख्त ना पैदा हो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कोई झूठी तारीफ़ भी कर दे। मैं तो इतना जो है सख्त हूँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। क्यों सख्त हूँ? क्योंकि देखें, झूठे तो बड़े आए हैं ना दुनिया में, झूठ बोलने वाले लोग बड़े होते हैं, लेकिन जिस शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया उसका तो लक़ब ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कज़ाब कह दिया। वो ज़बान मुबारक जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपसे बढ़कर इखलाक वाला दुनिया में मैंने पैदा ही क्यों नहीं किया। कोई इंसान आपसे बढ़कर इखलाक वाला इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। उनकी ज़बान मुबारक से जब उस झूठे के लिए जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, कज़ाब का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमा कज़ाब के लिए, और आज तक वो मुसलमा कज़ाब के नाम से जाना जाता है। मैं क्यों झूठे किसी मुद्दई नबूवत को जनाब तारीफ़ी कलमा कहूँ? बात समझाइए आपको। जो आप आर्गूमेंट पेश कर रहे थे कि भाई तारीफ़ी कलमात तो मिर्ज़ा साहब के ये हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये क्यों नहीं पेश करते? तो मैंने आपको बताया कि अगर मिर्ज़ा साहब ने चंद कलमात तारीफ़ी कहे भी हों, और ये भी उस दौर के हैं जब ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दावों शामों से दूर थे, जब कहते थे नबूवत बंद है, ठीक है, जो नबूवत का दावा करे मुसलमा कज़ाब का भाई है, क्या मैं नबूवत का दावा करके काफिर कौम से जा मिलूँ, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊँ? जब वो तमाम मौजज़ात को मानते थे, अंबिया कराम के बारे में बकवासियात जो लिखी हुई हैं किताबों में उस वक्त तक नहीं लिखी हुई थी। अब यही फारसी कलाम है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मनम मसीह ज़मा, मैं मसीह ज़मा हूँ, मनम कलीम खुदा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह, कहते हैं वो मैं हूँ। भाई इस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़ुबान से तो किसी पैगंबर की इज़्ज़त महफूज नहीं रही। और भाई क्या तुम्हारा कोई यहूदियों के साथ कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है? अगर तुम्हारा यहूदियों के साथ कोई वास्ता होता भी सही तो कलीमुल्लाह जो है ये तो मुसलमानों की इस्तिलाह है, ये तो मुसलमान कहते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बयान फरमाया, और इस्लाम को तो यहूदी नहीं मानते। तो आपका तो अगर यहूदियों के साथ भी वास्ता होता तो कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है उसका कोई लेना देना नहीं था आपका और यहूदियों के साथ। तो क्यों आपने ये मनम कलीम खुदा कहा? इस वजह से कि मुसलमानों को तकलीफ देनी है। जो मुसलमानों का कीदा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं, और ये मुसलमानों ने खुद नहीं गढ़ा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ। आगे कहता है मनम मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। बताओ, आप कहते हो जी मोहम्मद नाम लिखकर बड़ी तारीफ की है, वो किसकी तारीफ कर रहे थे मिर्ज़ा साहब? हाँ जी, आपने दोबारा आपको बताना है। आपने कहा जी कि मोहम्मद नाम लिख लिख कर मिर्ज़ा साहब ने तारीफें की हैं। मैंने असूल बना दिया, बता दिया आपको कि बिल फर्ज मान लें कि कुछ चंद तारीफ़ी कलमात उसने कहे भी हों तो वो गुस्ताखियों के पीछे, वो गुस्ताखियाँ जो हैं वो इन कलमात के पीछे नहीं छुपने वाली। लेकिन मिर्ज़ा साहब को तो आप जानते नहीं हैं, अंडरवर्ल्ड साहब, आप तो बहुत भोले भाले हैं। ये मिर्ज़ा साहब ने अपनी तारीफ़ें की हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ मनम मोहम्मद, वही फारसी का कलाम है। मैं हूँ मोहम्मद व अहमद, और मैं ही अहमद हूँ। मोहम्मद और अहमद कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ज़ाती नाम है, मोहम्मद और अहमद। कहता है मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, और इसी पर बस नहीं किया मिर्ज़ा साहब ने। मुजतबा किसको कहते हैं? अहमद मुजतबा किसको कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आगे कहता है कि मुजतबा बाशद। अब बताओ किसकी तारीफ की है मोहम्मद का नाम लिख के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने? जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी
ने दावा कर दिया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। सूरह फतह की आयत है। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, मुहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है मोहम्मद इस आयत में। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ये आयत लिख कर कहता है मेरे पे भी नाज़िल हुई है ये, इसमें मेरा नाम मोहम्मद रखा गया है और रसूल भी। कहता है मैं मोहम्मद हूं और मैं ही रसूल हूं। अब बताओ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो फारसी कलाम पेश कर रहे थे कि देखे मोहम्मद नाम लिख लिख कर हैं, थोड़ा सा और आपको जोर दे तो आपने इधर बैठ कर रोना भी था, रोने की एक्टिंग भी कर लेते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह, रो रो के देखें देखें कितनी तारीफ किया मिर्जा साहब ने मोहम्मद का नाम लिख लिख कर। भाई आपके अंदर अगर रत्ती भर भी ये जो आप ज़ाहरी पेश करते हैं, इतनी सी आपके अंदर इखलाकी अकदार हो ना रत्ती भर भी, तो कम से कम आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। मिर्ज़ा साहब ने जब खुद को मोहम्मद करार दिया इसी बात पे कि भाई मैं तो ये क्लेम लेके आया हूँ कि देखिए मोहम्मद की तारीफ की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़ा साहब ने, और इधर मिर्ज़ा साहब खुद को ही मोहम्मद करार दे रहे हैं, तो आपको कम से कम अखलाकी तौर पर डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ये लिबादा है, ठीक है ना, ये लिबादा। सीकर भाई समझ रहे होंगे मैं सख्ती कर रहा हूँ, ये तो बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, ये अंदर से सारे एक जैसे हैं। जो बंदा अंदर से ऐसा नहीं है वो तड़प जाता है ये सुनते ही कि मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है मनम मोहम्मद व अहमद के मुजतबा बाशद, मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अहमद हूँ, मैं ही मुजतबा हूँ। इनको इनकी कानों में जूं तक नहीं रेंगनी, ये सारे एक जैसे हैं। फ़र्क इतना है कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा बकवासियात के अल्फाज इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा गालम गलोच और नंगी शातमियत के लफ्ज़ इस्तेमाल करके इजहार करते हैं, और कुछ दबे लफ्ज़ों में और पोले पोले इजहार करते हैं। देखें नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। चीज भेजिए जरा, हो सके तो वो तो पढ़ दें जरा। मैं चक्कर तो व्हाट्सएप पे भेजिए। हाँ जी, अच्छा मैं देखता हूँ जी। तो अर्ज़ ये है सुनने वाले जितने भी बाकी भाई हैं कि ये एक लिबादा है ओढ़ा हुआ इन्होंने, और एक आड़ बनाई हुई है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करता होता तो कभी ना कहता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानियत है वो जब खुद तशरीफ़ फरमा थे दुनिया में उस वक़्त तो कम थी, अब मेरी शक्ल में जो रूहानियत है वो पहले से अकमल और अकवा और अशद है। ये कभी ना फरमा कहता मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। मैं अगर आमर नज़ीर भाई की इज़्ज़त करता हूँ ना तो मैं कतअन अगर मुझ में बिल फ़र्ज़ महाल, अगर मुझ में, क्योंकि हम तो एक जैसे दोनों इंसान हैं, कोई सुपीरियर हम में से नहीं है, कोई नबी और दूसरा उम्मती नहीं है, तो मैं मुझ में हो सकता है कोई कमाल आमर भाई से ज़्यादा हो, लेकिन अगर मैं आमर भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, मैं कभी अपना वो कमाल पेश ही नहीं करूँगा आमर भाई के मुकाबले में कि भाई देखें मैं अच्छा लिख लेता हूँ, आमर भाई के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लिख लेता हूँ, या आमर भाई के मुकाबले में मैं ज़्यादा अच्छा बोल लेता हूँ, या आमर भाई के मुकाबले में ये चीज़ मुझ में ज़्यादा बेहतर है। मैं कतन ये बात नहीं कहूँगा अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इस वजह से कि रिस्पेक्ट दिल में होती है, वो रोकती है इंसान को कि भाई नहीं ये आपके लिए रिस्पेक्टेड है, आप ऐसी बात ना करें। अगर आप में है भी तो आप इसको चुप कर जाएं, बस ना बयान करें, कोई मसला नहीं। लेकिन एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बंदा क्लेम करे कि वो नबी और मैं उनका उम्मती हूँ, तो ज़बान जल जाए उस बंदे की। अगर वो वाकई उम्मती है तो वो सोचे भी ऐसा कि उनकी रूहानियत जो थी उनके अपने वजूद के साथ तो वो बहुत हल्की थी, मेरे वजूद काने बैंड के साथ जो आई है वो बड़ी अकमल अकवा और अशद है। हाँ जी, उनकी रूहानियत पहली रात के चांद की तरह है, मेरी 14वीं रात के चांद की तरह है। आसमान से कई तख्त उतारे गए, मेरा तख्त सबसे ऊपर बिछाया गया। हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हुई और अब गलती पर वफात पा गया, और खुदा मुझे तो एक लम्हे के लिए भी गलती पर नहीं रहने देता। अपने मौजज़ात बताने पे आए तो कहे मेरे 10 लाख मौजज़ात हैं। हाँ जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए 3000। क्या इसको कहते हैं, इसको आप समझेंगे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कर रहा है? इसको जितनी शदीद नफरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से थी उतनी ही नफरत इस बदबख्त को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अल्फाज, जो तरीक़ा, जो लहजा इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इख्तियार किया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इख्तियार नहीं किया। वजह क्योंकि घेरना जो था ना लोगों को
जो पागल बनाने थे लोग वो मुसलमानों में से बनाने थे। अगर वही काम उसी तरीके से ये इधर करता तो बंदा तो कोई भी नहीं आना था इसके चक्कर में। तो ये लबादा ऊपर से ओढ़ा हुआ था, अंदर इसकी किताबें पढ़ के देखो इसने क्या लिखा हुआ है। सीकर भाई ने मुझे भेजा है जनाब, ये मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। सदी 14वीं का हुआ सर मुबारक कि जिस पे वो बदरुद्दुहा बन के आया। ये बदरुद्दुहा ये किसका लक़ब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। शम्सुद्दुहा व बदरुद्दुजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। कहता है कि जिस पे वो बदरुद्दुजा बन के आया, शबे फीजे आवज ने जब तूल पकड़ा तो आखिर वो शम्सुल हुदा बन के आया। ये शम्सुल हुदा कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद पैचारा साजिए उम्मत है, अब अहमद मुजतबा बन के आया। ऐदा दस दे जी की मतलब है जी। मुहम्मद पे चारा साजिए उम्मत है, अब अहमद मुजतबा बन के आया। ये क्या मतलब है? क्या मतलब है जी? फारसी वाले अंडर वाटर साहब इधर बताएं नीचे क्या मतलब है इसका। वो क्लेम कर रहा है कि मैं खुद मोहम्मद हूँ, खुद मोहम्मद हूँ, पहले मैं मोहम्मद के नाम से आया हूँ, अब अहमद मुजतबा बन के आया हूँ, क्योंकि मैंने ही सारा इस उम्मत का काम करना था, पहले भी मैं ही करके गया हूँ, अब भी मैं ही आया हूँ। हकीकत खुली बेइज्जती आसानी की हम पर कि जब मुस्तफ़ा मिर्जा बन के आया। दसो जी अंडर वाटर साहब, कौन से मोहम्मद की तारीफ की है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने? वो कह रहे हैं कि ये मिर्जा काना बैंड जो है, ये नौज बिल्ला खुद मोहम्मद है, अब मिर्जा बन के आया है। पहले मुस्तफ़ा थे, अब मिर्जा बन के आया। तो भाई इस बंदे के बारे में आप हमें आके बताते हो कि आप तो सिलेक्टेड चीज़ें पेश करते हैं। दो गल्ला मैं ताड़े सामने आपके सामने पेश की हैं मैंने, अरबी की नहीं आप पेश करते। वो की जवाब देता जे? आपको तो पता भी नहीं चला वो है क्या था। बात मैंने क्या हुई है, सीकर भाई कह रहे थे तर्जमा बता दें। तर्जमा में इसलिए नहीं बता रहा था कि लोगों को पता चले, इनको तो बेचारे को पता ही कख नहीं, खुद को नहीं पता इसको बेचारे को कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, अरबी का मतलब क्या है, तर्जमा नहीं कर सकता। और ये आर्गुमेंट ये लेके आया है कि देखिए अरबी वाली तो बड़ा अच्छा कलाम है मिर्जा साहब का, वो तो पेश नहीं किते, अच्छा कलाम है। इन्नमा नरुद्दु सब्बत साबिना अला वजूहिहिम। लानत डाली जाती है ऐसे बंदे पे एक अच्छे मुअज़्ज़ज़ मुआशरे में जो किसी की गाली के जवाब में भी गाली देता है, लोग उसको भी बुरा कहते हैं। वो बदबख्ता उन्हें तो जबान गंदी कर ली, तू क्यों जबान पलीद की अपनी? वो तो है ही इंज दा, तू तो चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा सी, तू को गालां कढ़ियां ने। हाँ जी, मिर्जा साहब को कुछ नहीं है। वो कहता जो गाली तू मुझे देगा वो मुझसे सुनेगा, मैं तो गाली देने वालों की गाली उनकी तरफ लौटाता हूं। हाँ जी, ये अरबी कलाम मिर्जा साहब का। अभी रहते ना तो फिर मैं आपको दिखाता मिर्जा साहब की अरबी दानी भी। हाँ जी, लम यलिद काम फहम सा लफ्ज़ है लम यलिद, कुरान पाक की सबसे छोटी और अकीदा तौहीद की सबसे मजबूत सूरतों में से सूरह इखलास है। लम यलिद उसका लफ्ज़ है एक। और तीसरी क्लास के बच्चे का भी पूछ लें, उसको भी पता होगा। मिर्जा गुलाम कादियानी को लम यलिद के मानी नहीं थी पता, बिल्कुल इसको नहीं पता था। लम यलिद का मानी खुदा किसी का बेटा नहीं है ये होता है, या लम यलिद का मानी खुदा किसी का बाप नहीं है ये मानी होता है। मिर्जा को नहीं पता था। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, दर्जन भर जगहों पे मिर्जा ने लम यलिद का गलत मानी किया हुआ है। भी हो ना, ये हमारे सामने आके जनाब मर्दई टोपी ड्रामा लगाते हैं टीटो पार्टियां, नहीं वो जो किताबत की गलती होगी है, किताबत की गलती होगी। अभी सारी किताबत की गलतियां जो दुनिया पैदा हुई, हजारों मुसन्नफीन गुजरे, तो ये सारी किताबत की गलती मिर्जे की किताबें जो निकलनी ऐसी हैं जिसका दावा नबूवत दस। भाई एक आम बंदा किताब लिखे उसमें किताबत की गलती हो जाए तो चलो ठीक है, बंदा गलती, भाई उसका तो नबूवत का दावा है, उसमें तो गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। खुद लिख रहा है किताबें, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान पाक में फरमाया है ना कि अगर ये कलाम खुदा ताला के अलावा किसी और की तरफ से होता तो हम ज़रूर इसमें तजाद पाते। ये बहुत बड़ा एक सबूत है
کہ جو بندہ من گڑت خود ساختہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر کے گھڑے گا، لکھے گا، افترا کر کے، اس کے کلام ایسا ہی ہوگا جیسے مرزا غلام قادیانی کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ تو اپنے کلام کا خود ذمہ دار ہے، وہ تو غلطی کتابت کی بھی نہ ہونے دے۔ وہ اگر الہام کر کے مرزا صاحب کو بتا سکتا کہ مرزا صاحب تہاڈے مکان دے پچھواڑے اور ٹٹی پئی ہے تے وہ اٹھائی نہیں ہے، آپ کی نوکرانی جو صفائی کر کے اس نے نہیں اٹھائی، وہ ٹٹی ادھر ہی پئی ہے، تو مرزا صاحب ان کان تو پکڑ کے محترانی کو کہیں اے ادھر آؤ نا، وہ تم نے پیچھے مکان کے صفائی کی ہے، ٹٹی ادھر پڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ کہتی ہے مرزا صاحب میں تو صاف کر کے آئی ہوں۔ مرزا صاحب اس کو پکڑتے ہیں، پیچھے لے کے جاتے ہیں اور جا کے دکھاتی ہیں، اے کیجیے، اے دیکھو تو کیتی پئی تھے، کیوں نہیں چکی؟ اور بعد میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صفائی کر کے آئی تو مجھے کشفن دکھایا گیا کہ وہاں ٹٹی پڑی ہوئی ہے۔ جو مرزا صاحب کا خدا الہام کر کے ٹٹی کا بتا سکتا ہے کہ ادھر کی پڑی ہوئی ہے، آپ کی نوکرانی نے صاف نہیں کی، ہاں جی، جو نہ بھی بتاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دوبارہ صاف کر لیتی، کیڑا قادیان پورے گند پی جانا سی ادھے نال۔ وہ خدا مرزا صاحب کا کتابت کی غلطی نہیں بتا سکتا تھا مرزا صاحب کو کہ بھئی اس پہ تو پوری انسانیت کی تعلیم اور تربیت کا انحصار ہے اس کتاب پہ، تو یہ ایسے ہی کتابت کی غلطی چل رہی ہے تو یہ تو بڑا بلنڈر ہو جائے گا، تو مرزا صاحب انہوں صحیح کراؤ۔ تو ساری کتابت کی غلطی مرزا صاحب دی کتابہ چ نے، لیکن چلو ایک آدھ غلطی ہو تو بندہ چلو کہہ دے کہ یار اچھا چلو، اور جواب جو نہیں ہے بیچاروں کے پاس تھوڑا رستہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو ہوگی جی کتابت غلطی۔ وہ بھائی درجن جگہوں پہ کتابت کی غلطی ہوتی ہے، درجن بار جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لام جلید کا معنی غلط لکھا ہوا ہے، لوگوں کو ڈرامہ لگایا ہوا ہے جی بڑے مرزا صاحب عربی دان تھے، وہ پہ نقلاں مار مار کے 4 اکھر سکھ کے تے عربی دی 4 لڑاں لکھ لینیاں، اے نہ کوئی بندہ عربی دان بن جاندا۔ اتنے مرزا غلام احمد قادیانی آپ کا عربی دان ہوتا تو قرآن پاک کی وہ 30 صورتیں جو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بیان کرتی ہیں، اور مرزا صاحب کو کوئی ایک تو نظر آئی ہوتی کبھی، اتنے جو بڑے عربی دان تھے کوئی ایک تو کبھی نظر آئی ہوتی کہ بھئی یہ تو وفات عیسیٰ بیان کر رہی ہے، نعوذ باللہ، ایک بھی نظر نہیں آئی، اتنے بڑے عربی دان تھے مرزا صاحب آپ کے، اور بتاتے پھر رہے لوگوں کو میں تو مربجہ عقیدے پر، بس جو مربجہ ایک عقیدہ تھا میں بھی اسی پہ لگا ہوا تھا۔ وہ بھئی عربی نہیں سی آندی تینوں؟ قرآن پاک جو سب سے بہترین، دنیا کی بہترین اور آسان فہم جو عربی ہے، اس میں 30 آیات کہتے ہو ایسی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بھی نہیں نظر آئی 52 سال، ایسے بڑے عربی دان تھے آپ۔ تو یہ ڈرامہ بند کریں، عربی عربی عربی، بھی ایک اجمی بندے کو اگر عربی بولنا آ جائے تو وہ کمال ہو جاتا ہے، جہاں کافروں کو بھی آتی ہے عربی، کافروں کو عربی آتی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کی انہوں نے کو معجزہ ہو گیا یا کوئی بڑا انہوں نے کو کمال کر لیا جائے، ایک زبان ہے، لینگویج ہے، کوئی بندہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ اگر ہم اردو بولنے والے انگلش سیکھ سکتے ہیں، اردو بولنے والے فارسی سیکھ سکتے ہیں، عربی بھی سیکھ سکتے ہیں، تو اگر کسی دوسری زبان پہ بندے کو عبور ہو جائے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، 32 زبانیں آتی تھیں ان کو، اور 32 زبانوں پہ عبور تھا، ان کی گرامر پڑھا سکتے تھے وہ 32 زبانوں کی، اے کہ یہ معجزہ ہو جاتا کوئی، بھئی ایک بندہ محنت کر کے اتنا تو علم حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر، اصلیت یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کہ جہاں جہاں یہ محمد کا نام لکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم تعریفیں کرتا ہے، اصل میں یہ اپنی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے یہ اپنی کر رہا ہوتا ہے پاگل بنانے کے لیے، کہ میرے ملانگ جو ہیں لوگوں کو جا کے پاگل بنائیں گے کہ دیکھیں مرزا صاحب تو بڑے عاشق صادق تھے، تو بڑا مرزا صاحب نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں۔ بھی عاشق صادق جو ہیں وہ ان کے یہ کام ہوتے ہیں کہ جب اپنی پیش گوئیاں جھوٹی نکلیں، پوری نہ ہو، تو منہ اٹھا کے کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ یہ عاشق صادق ایسے ہوتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو، اور یہ ٹوپی ڈرامہ بند کرو جو لبادہ اوپر اوڑھ رکھا ہے، اس کو بند کرو۔ اگر اتنی جوگے ہو تو پہلے خود لٹریچر پڑھو مرزا غلام قادیانی کا، پھر آگے بہتان بند ہو، چند سلیکٹڈ چیزیں ادھر آ جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، پورا مہینہ بیٹھو میرے سامنے، پورا مہینہ ہر روز یا رسول 5 نئی باتیں آپ کو پیش کرے گا، 10 نئی پیش کرے گا، لے پورا مہینہ، لیکن جواب دینا ہے۔ 10 نئی باتیں میں روز پیش کروں گا پورا مہینہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ مہینے میں کتنی بنتی ہیں؟ 300، پورا مہینہ 10 نئی باتیں، اور پیش بھی ایسی کروں گا جن کے سامنے مرضیت مرتی مر جائے جواب نہیں بنے گا ان کے پاس۔ آ جاؤ انڈر واٹر صاحب کہ جی چند سلیکٹڈ، 300 چند سلیکٹڈ گلاں ہوندیاں نے، تواڈے کول کی ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ کبھی یہ بھی آپ نے دھیان مارا ہے
24 घंटे, पूरा महीना, 7 दिन, पूरा साल 2 टॉपिक लगाए हुए हैं। नबूवत जारी है, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, बस। इसके अलावा कादियानी के पास है, कभी उनको भी जाके समझाओ, को शर्म करो। बस इन दोनों चीज़ों के बाद कुछ अलावा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 300 चीज़ें एक महीने में, रोज़ाना 10 नई बातें, कोई रिपीट नहीं करूँगा। आ जाओ। में ड्रामा ये बस सिलेक्टेड चीज़ें तो फलां टिम्पान। शुक्रिया जी, वाह सारा टाइम ले लिया तुहाडा। नहीं जबरदस्त, माशाल्लाह, मजा आया। सी कि इंटरप्ट ना करिए, बड़ा जबरदस्त चाह रहे हो। हाय हाय, तो ये मामलात है जी। मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें साफ जाहिर है कि भाई हमें किसी इंसान से कोई नफरत नहीं है, ना ही किसी कम्युनिटी से नफरत है। नफरत है अकायद के साथ, और ये आपके ईमान का जुज़ है। जिसको ये कुफर सुनकर जिसको बेचैनी नहीं होती, जिसको नफरत नहीं होती, तबीयत पे गिरा नहीं गुजरता, वो अपने ईमान की फिक्र करे भाई, सीधी सी बात है। किधर गए जी? एक मिनट में बकार अहमद भाई आए हुए जी। बकार भाई कैसे, ठीक ठाक है? बहुत खूब ज़िया भाई, आपने बहुत अच्छा बयान किया है, मज़ा आ गया। थोड़ी देर में बीच में नहीं था, लेकिन जो बातें आपकी सुनी हैं, क्या खूब आपने बयान किया है। तो मेरे ख्याल में उनकी तसल्ली तो हो गई है, वो आइंदा ये अल्फाज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो समझदार बंदे लग रहे थे मुझे। क्यों सीकर भाई, ऐसी ही है ना? बिल्कुल नहीं, वो बात वही आई थी ना, सिलेक्टिव। वो समझाने का तरीका तो वही था ना। चलो सख्ती कोई कह सकता है, लेकिन बात तो वही थी कि भाई तू एकदम डेमो दिया है कि देखो जी पहले मैंने तारीफ की है, साथ ही मैंने ये कह दिया, तो सारी गई ना, सारा कुछ खत्म हो गया। नहीं, वो तो एक मिसाल थी ना, वो तो इतनी दिल पे लेनी भी नहीं चाहिए थी। और इस तरह ही है कि वो कहते नहीं, कहते गिलास में मेंगड़े डाल के दे देना, पानी के गिलास में, दूध के गिलास में। तो यही मेरी बात है भाई, एक जगह लिख देना मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, और साथ एक बंदा यहाँ तक चला जाए कि अल्लाह माफ करे, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कि ज़हनी इर्तिका जो है वो इसका ज्यादा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अस्तगफिरुल्लाह, ज़हनी इर्तिका भी ज्यादा था जनाब। और ये लिखे हुए अल्फाज लिखे हुए कि ये वो जुज़वी फजीलत है जो हासिल है मिर्जा गुलाम अहमद को। अंदाजा करो आप, कोई एक बात है जिसपे बंदा पिटे, सिर भाई फाड़े। सिलेक्टिव क्या होती है ये चीजें? जब एक बंदा ने दावा किया हुआ है और उसके पास उसके ऊपर जो इतराजात हैं वो बेशक सेम भी हों, तो वो तो हर बंदा कर सकता है। राणा भाई बात ये है, एक बंदा सारी जिंदगी शराफत की जिंदगी गुजारे, अगर उसके हाथ से मर्डर हो गया है तो क्या कोई बंदा कहेगा कि तू मर्डर दे नाल वो क्यों नहीं पेश किया जो तूने गरीब ਨੂੰ खाना खवाया सी? क्या अदालत लेगी उसका वो किताब? बच्चों वाली बातें है ना, बच्चों वाली बातें। भाई सिलेक्टिव ही होगा, केस टू केस होता है। एक बंदा जितना भी नेक हो, अगर उसका बेटा आगे कह दे कि अदालत में कि ये रंगीन मजाज है, तो वो उसका सारा किया दरा जो पहले है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है। नहीं कुफर है ना जी, कुफर है। हमने कुफर बयान किया उस बंदे का। एक बंदे को कोई तो वजह है ना भाई, एक बंदे ने हम सबको इस्लाम से खारिज किया हुआ है, हम उसको इस्लाम से खारिज समझते किस बेस पे? कि वो अच्छा 5 वक्त की नमाजें पढ़ता था जी, फलाना करता था, तो यूं कर दिया भाई उसी बेस पे जिसमें उसने हमें खारिज किया हुआ है। हमारे नजदीक वो कज़ाब है, दज्जाल है, हमारी वो और बेस है। बच्चों वाली बातें ना, सिलेक्टिव अच्छी चीजें मतलब की एक्सपेक्ट कर रहे हो साढ़े को लोग? कैसी ब्राड ला के मिर्जा गुलाम अहमद ने शेर पढ़ा गया बह के, मिर्जा की जय, हाँ जय मिर्जा की, जय मिर्जा की। मतलब क्या एक्सपेक्टेशन तुसी चेक करो। जो नानो का घर होता तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये बह के मिर्जा साहब ने शेर पढ़ गए। तुम्हें नहीं पता हम क्या मानते हैं उसको, तुम्हें नहीं पता हमारे नजदीक क्या वैल्यू उसकी, क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो? ये अपनी ब्रॉड पर क्यों नहीं पेश करते हो भाई? जो तुम्हारा वो बड़ा जो कुकड़ है, बांगे दे दे के फतावा रिजविया जिस आवाज में पढ़ता है, रूहानी खजाइन, उसको कौन ना पढ़े किस दिन बैठ के बुक खोल के पढ़े? खुदा का तस्वुर पेश करे ना, मिर्जा गुलाम अहमद ने खुदा का तस्वुर पेश किया, अपने खलीफा का पेश करे ना, बगैर तो जिसने अल्लाह ताला की माज़अल्लाह ठोड़ी पकड़ ली थी, अल्लाह ताला को औरत के तौर पे उसके अल्लाह की ठोड़ी पकड़ ली थी जिसने ख्वाब के अंदर, जो नुत्फों की बात कर रहा है देने की, बगैर तो तुम्हारा खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है?
तुमने तो अल्लाह लिख कर किया है सारा कुछ। शर्म है। करे भाई जरा बात मैं दो मैं देखें, जैसे भाई मजहब भी है उसके बारे में ठीक है, वो काफिर तो हैं, लेकिन कभी मुसलमानों में इतनी नफरत उनके बारे में देखी है? किया तो उन्होंने भी, वो भी जालिम है, उन्होंने भी हरकतें अच्छी नहीं की, लेकिन इतना जो मुसलमानों में जो इतना ज़्यादा इनके बारे में नफरत पाई जाती है वो सिर्फ इस मिर्ज़ा कादियानी की अबारतों की वजह से और मिर्ज़ा कादियानी के दजल की वजह से जनाब, ये सारा कुछ जो है मुसलमानों में जो नफरत पाई जाती है। इतना गंद तो बावला रानी ने भी नहीं बका होगा जितना मिर्ज़ा कादियानी ने बका होगा। सीकर भाई, मैं ना थोड़ी इजाज़त चाहता हूँ सबसे, काफ़ी देर से 4 घंटे हो गए बराड़ लगाई हुई है, तो मैंने थोड़ा निकलना है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। ये ठीक हो गया राणा भाई, जज़ाकल्लाह। सुनने वाले, देखने वाले, आने वाले सब जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ो, क्लोज। कासिम